Hello guys, I welcome you all to the day 132 of our series, and in today's session we are going to learn the transition of past continuous tense from active voice to its passive voice. And before getting started with our today's topic, let's discuss your previous day's task first. And here you are given the task of completing these exercises by using correct vocabulary. So let's go through these exercises first. Analysts are worried that the debit burden is increasing. It would be the debt burden. The debt burden. Next is many believe the credit bubble has already burned. So many believe the credit bubble has already burst. And next is he has just contradicted. Okay, here the spelling of this word is given wrong. It would be contradicted. Contra. R was missing from this spelling. Contradicted what he told me earlier. Next is the surge in the stock market is good news for inventors. It would be investors. Inventors is a whole different word. Next is the solid growth should underpin. It should not be this word underpin. It should be underpin. Underpin, not pine. The economy. Next is the company is planning to move its corporal headquarters. It should have been corporate. Corporate. Next is, would you advise me to invest in equities? In equities at the moment. And the last question will be, some people have received record fields. So the correct answer would be the record yields, not fields. Means the record profits. Now here is your second exercise. On the surface, the dash seems uncertain, but the dash situation is good. So the outlook seems uncertain, but the underlying situation means base level situation is good. Next is they borrowed a lot of money, so there is still a significant debt burden. Debt burden. Next one is they said different things, so I was given conflicting advice. Conflicting advice. Next is there is always a risk if somebody chooses to dash in dash. If somebody chooses to invest in equities. Next is if the banks go on lending more money, the credit dash could dash. The credit bubble could burst. Next is if shares continue to lose value, the market is put under pressure. Under pressure. Now let's move to our session. और आपको ये करना था, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस था आपको इसको रिवाइज करना था. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं. एक बार स्ट्रक्चर था इसका. पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर्ब को यूज किया जाएगा और उसके बाद में V1 ing. नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम यही करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को ऐड किया जाता है और उसके बाद में V1 ing. और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बीच में से उठा के स्टार्टिंग में ले जाया जाता है. नेक्स्ट में आते हैं अब डायरेक्ट. और ये जो एक्सरसाइज है, ये वाली स्लाइड मैंने एज इट इज उठाई है प्रीवियस सेशन से, क्योंकि ये काफी ज्यादा आगे यूजफुल होने वाली है हमारे सेशन में. तो देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया था एक कि जितने भी हमारे बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं और फोरग्राउंड जितने भी एक्शंस होते हैं उनको हम इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में लिखते हैं. जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें कोई ना कोई दो काम हो रहे होंगे, तो उन दोनों में से जो काम बैकग्राउंड में चल रहा होगा उसको लिखेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस में,
यानी आईएनजी स्ट्रक्चर से उसको मैं बताएंगे हम। और कोई और काम बीच में अचानक से आएगा जो उसको पीछे वाले कंटिन्यूअस काम को जो इंटरप्ट करेगा, इसको लिखा जाएगा सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि द फोन रैंग व्हाइल आई वाज हैविंग डिनर, कि डिनर जब मैं कर रही थी, तो ये था हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म, ये बैकग्राउंड में एक्शन हो रहा था, दैट आई वाज हैविंग डिनर एट दैट टाइम एंड सडनली द फोन रैंग, और उसी टाइम पे फोन बजा। तो अब इसने क्या किया, इस एक्शन को इंटरप्ट किया, इसके बीच में आया ये, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए रैंग सेकेंड फॉर्म है, ये रिंग रैंग रैंग, तो रैंग सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी कि यहाँ पे हमने इंडेफिनिट को यूज किया। तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे, ये आपकी थी क्विक रिवीजन। अब डायरेक्ट आते हैं हमारे कन्वर्जन पे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वर्जन वाज वर, और यहाँ पे डू को यूज किया गया है एज आर मेन वर्ब, तो यहाँ पे V1 ing की बजाय डूइंग लिखा गया है, was डूइंग और वर डूइंग, ये हो गया एक्टिव में। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी उसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गिवन थी was वर, हमने एज इट इज यूज कर ली पैसिव के टाइम में भी was वर्ब। लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चर तो ये होता है B + V3, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो B + V3 में अब अगर आप ये सोच रहे हो कि was वर, ये भी तो B ही है एक टाइप से, तो इसमें इसके डायरेक्ट बाद में अगर हम V3 लगा देंगे was वर और उसके बाद में डन लगा दिया तो गलत कैसे हो गया। तो देखिए अगर आपने was वर के डायरेक्ट बाद में डन लगा दिया तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। लेकिन हमें कॉन्टिन्यूटी शो करनी है और कॉन्टिन्यूटी हमेशा आईएनजी स्ट्रक्चर ही शो करता है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी कहीं नहीं शो होती। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, आईएनजी हमें इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है हमारे स्ट्रक्चर में, इस वजह से हमें बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने बी में आईएनजी लगाया हमारी कंटिन्यूटी भी मेंटेन हो गई, और इसके बाद में V3 की जो कंडीशन थी वो हमने लगा ली यहाँ पे, was being done और were being done, ये हो जाएगा। तो अभी जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, somebody was cleaning the room when I arrived। अब यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम केसेस में 2 सेंटेंसेस मिलेंगे, और अगर कहीं पे एक सेंटेंस होगा तो वहां पे आप समझ जाओगे कि आगे पीछे इसके कोई स्टोरी चल रही थी, स्टोरी में से उस एक सेंटेंस को निकाला गया है, अदरवाइज आपको हर केस में लगभग 2 ही सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि कोई रूम साफ कर रहा था, फर्स्ट एक्शन, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आई, सेकेंड एक्शन। तो यहाँ पे देखिए वाज क्लीनिंग द रूम, कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा था। तो अब वापस आते हैं इस पे, इसके पैसिव में वाज हेल्पिंग वर्ब जो गिवन थी हमने वही रखी। अब यहाँ पे आईएनजी स्ट्रक्चर था, अब आईएनजी हम क्लीन में तो रख नहीं सकते क्योंकि जो मेन वर्ब है वो तो हमें हमेशा V3 में रखनी होती है, क्लीन्ड। तो इससे ये आईएनजी लगाने के लिए हमने बी को रखा है यहाँ पे, was being cleaned, और आगे सेम रहेगा when I arrived। नेक्स्ट है there was somebody walking behind us, कोई हमारे पीछे चल रहा था। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर पैसिव में हमें बनाना हो, I think we were being followed, कि हमारा पीछा किया जा रहा था, were, being और V3 यानी कि followed। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द आंसर्स। तो यहाँ पे देखिए द आंसर्स को हम आगे लेके आएंगे, तो ये हो गया द आंसर्स वर, स्टार्टिंग में यहाँ पे था वॉज एक्सप्लेनिंग, वॉज था टीचर की वजह से, कि टीचर हमारा सिंगुलर था तो हमने वॉज यूज कर दिया। द आंसर से प्लूरल है तो वो यूज कर देंगे हम यहाँ पे। सो द आंसर्स वर बीइंग, क्योंकि आईएनजी गिवन है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इस वजह से आईएनजी लगाना पड़ेगा, और वो हम लगाएंगे बी में। बीइंग और मेन वर्ब थी एक्सप्लेनिंग, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हो गया एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, और ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे एक बार इन स्ट्रक्चर्स को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए द टीचर वॉज टीचिंग ग्रामर ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पे ग्रामर ये पढ़ाई जा रही है। अब देखिए आप एक बार इसको हिंदी में समझिए, टीचर ग्रामर पढ़ा रही थी ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, तो ग्रामर पढ़ाई जा रही थी यही होना चाहिए इसका पैसिव। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे होगी इसकी, ग्रामर वॉज और आईएनजी है तो हम भी आईएनजी लगाएंगे, और आईएनजी कैसे लगाया जा सकता है, बीइंग ये लगा के। सो ग्रामर वॉज बीइंग
और मेन वर्ब थी हमारी यहाँ पे टीच, तो ये हो जाएगा टॉट। और यहाँ पे हम बाय द टीचर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियस है अगर कोई टीच कर रहा है तो वो टीचर ही होगा। सो ग्रामर वॉज बीइंग टॉट और उसके बाद में इसको एज इट इज लिख देंगे ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स wasn't minutely observing the dancers, यानी कि जो एक्सपर्ट्स की जो जूरी थी वो डांसर्स को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं कर रही थी। तो ये हो जाएगा कि जो डांसर्स हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था, यानी कि स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी द डांसर्स, और क्योंकि इस बार प्लूरल है तो ये हो जाएंगे वर नॉट। वर नॉट या वरंट आप दोनों लिख सकते हो। सो द डांसर्स वर नॉट minutely, minutely। अब देखिए ऑब्जर्विंग है, यहाँ ing है, तो ing है तो हमें भी ing लगाना पड़ेगा, और ing किस में लगाएंगे, बी में, तो ये हो गया minutely being, और मेन वर्ब की टर्न है, मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहती है, तो ये हो जाएगा being observed, observed। और नेक्स्ट हो जाएगा by the jury of experts। नेक्स्ट में आते हैं was the suspect dragging you, ड्रैग यानी कि खींच के ले जाना, घसीट के ले जाना, और सस्पेक्ट जिसपे शक हो, एक्यूज्ड ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की। वाज द सस्पेक्ट ड्रैगिंग यू, क्या जो सस्पेक्ट था वो तुम्हें घसीट के ले जा रहा था, तो इसका ऑपोजिट, इसका पैसिव हो जाएगा क्या, तुम्हें घसीटा जा रहा था। तो तुम्हें यहां से स्टार्टिंग होगी, यू स्टार्टिंग में आ गया, तो ये हो जाएगा, देखिए यू लगाएंगे तो यू के साथ में आप क्या ये बोल सकते हो वॉज यू, नहीं क्योंकि यू प्लूरल है, तो ये हो जाएगा वर यू, वर यू बीइंग, और यहाँ मेन वर्ब है हमारी ड्रैग, तो ये हो जाएगा ड्रैग्ड, वर यू बीइंग ड्रैग्ड बाय द सस्पेक्ट, ये हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर दिया, व्हाई वाज द सस्पेक्ट ड्रैगिंग यू, तुम्हें क्यों घसीट रहा था वो सस्पेक्ट, तो यहाँ पे वाई इसमें भी स्टार्टिंग में हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वाई वर यू बीइंग ड्रैग्ड बाय द सस्पेक्ट। ध्यान रखना यू है और यू के साथ में आप वर लगाते हो हमेशा, वाई वर यू। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है वॉज वर आईएनजी को वॉज वर बीइंग V3 में हम कन्वर्ट करते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं हमारे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। अभी यहाँ पे काम करिए, वीडियो को आप पॉज करिए यहाँ पे और इन सभी सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करिए, अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ताकि आपको पता चले कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट है मुझे उस समय पढ़ाया जा रहा था, मुझे तो ये हो जाएगा आई वॉज बीइंग। अब जिस भी सेंटेंस में आपको कंटिन्यूटी की सेंस आए हर उस सेंटेंस में आप आईएनजी लगाओगे। जैसे इन सब में कंटिन्यूटी की सेंस आ रही है कि कोई काम कंटिन्यू था, उस टाइम पे वो ऐसा हो रहा था, तो इस वजह से बीइंग लगा देंगे। आई वॉज बीइंग टॉट उस समय, एट द टाइम, एट द टाइम। नेक्स्ट है पौधों को पानी दिया जा रहा था, तो पौधों को द प्लांट्स, द प्लांट्स, और क्योंकि इस बार ये प्लूरल हो गए तो ये हो जाएगा वर, और कंटिन्यूटी है तो बीइंग, पानी देना, इसके लिए हम यूज करते हैं वाटर को एज अ वर्ब, तो वाटर्ड ये हो जाएगा द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड। देखिए मैंने आपको पहले बताया था एक बार, वाटर इसे हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी। एज अ नाउन अगर इस वर्ब को यूज करेंगे, इस वर्ड को यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा पानी, सिंपल, और वर्ब की तरह यूज करेंगे यानी कि एक्शन की बात हो जाएगी, यानी कि पानी दिया जाना। नेक्स्ट है फूल तोड़े जा रहे थे, तो ये हो जाएगा फ्लावर्स, फ्लावर्स, और प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे देखिए तोड़े जा रहे थे, यहां से हमें पता चल गया प्लूरल है, तो फ्लावर्स वर बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूटी है, बीइंग प्लक्ड। फूल तोड़ने के लिए हम ये यूज करते हैं वर्ब प्लक द फ्लावर्स, सो फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड।
नेक्स्ट है खाना खाते समय फ्यूचर प्लान्स की चर्चा की जा रही थी। The future plans, the future plans, और क्योंकि पास्ट है तो वर, कंटिन्यूटी है तो बीइंग, और चर्चा डिस्कशन, तो इसकी अगर हमें वर्ब चाहिए तो डिस्कस्ड। The future plans were being discussed खाना खाते समय, while having meal, while having meal। अब मील यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन सा है, यहाँ पे सपर की बात हो रही है, लंच की हो रही है या ब्रेकफास्ट की हो रही है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मील, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली टाइम नहीं गिवन। सो द फ्यूचर प्लान्स वर बीइंग डिस्कस्ड व्हाइल हैविंग मील। नेक्स्ट है जब सनी वर्कशॉप में वापस आया तब उसकी कार ठीक की जा रही थी। तो इसको आप देखिए, ये जो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, दो सेंटेंसेस हैं, आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। आप इस सेंटेंस को भी पहले लिख सकते हो, आप इस सेंटेंस को भी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा when Sunny arrived to the workshop, to the workshop यानी कि जब वो वर्कशॉप वापस आया, arrived to the workshop, या फिर आप arrived की बजाय return भी यूज कर सकते हो, वापस आना, return, तो ed हो जाएगा when Sunny returned to the workshop। नेक्स्ट है तब उसकी कार ठीक की जा रही थी, अब यहां पैसिव है तो ये हो जाएगा his car at that time wait, तब को भी लिख देते हैं यहाँ पे at that time his car was being repaired, at that time his car was being repaired। तो ये हो गया इसका पैसिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अब डायरेक्ट। आप जल्दी से यहाँ पे फिर से आप स्क्रीन को पॉज करिए और फिर से इन 5 के 5 सेंटेंसेस को ट्राई करिए और इस बार देखना कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। इसमें खुद को चैलेंज करो। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नए संचालक को मशीनें दिखाई जा रही थी। देखिए संचालक के लिए तो वर्ड जो यूज होता है दैट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर। तो नए संचालक तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, द न्यू ऑपरेटर वॉज, क्योंकि एक ही पर्सन है ये, मशीनें दिखाई जा रही थी, वॉज बीइंग, दिखाना, शो, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है शोन, वॉज बीइंग शोन द न्यू मशीन्स। The new operator was being shown the new machines. The machines, सॉरी यहाँ पे नई मशीनें नहीं है, the machines ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अंजू बीमार थी तब उसे घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। फिर से दो सेंटेंसेस हैं, जब ऐसा हो रहा था तब ये हो रहा था। आपकी मर्जी, आप पहले इसको भी लिख सकते हो, आप पहले इस सेंटेंस को भी लिख सकते हो। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। जब अंजू बीमार थी, when अंजू, कैपिटल होगा ए क्योंकि नाम है ये, when अंजू was ill और was sick, was unwell, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। when अंजू was ill, she was being taught, she was being taught, घर पर ही, at home। When Anju was ill, she was being taught at home. Next है भावेश को हमेशा बताया जाता रहा है कि उसे आगे क्या करना होगा। कि से पहले एक सेंटेंस, इसके बाद में दूसरा सेंटेंस। तो यहां से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा भावेश was always, क्योंकि हमेशा गिवन है, यहाँ पे बताया जाता रहा है कि कोई उसको बता रहा था हमेशा, तो बताया जाता रहा है, was always
being told, was always being told या being guided भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में क्या आगे क्या करना होगा, what to do next। ए है यहाँ पे what to do next। भावेश was always being told what to do next। नेक्स्ट है पिछले पूरे हफ्ते गलियां साफ नहीं की गई थी। तो यहाँ पे गलियां इसी से स्टार्ट करते क्योंकि देखिए पिछले पूरे हफ्ते ये टाइम है। टाइम का जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस अगर हो तो मीन्स इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव अगर ना हो तो आप इसको स्टार्टिंग में भी रख सकते हो सेंटेंस के और सेंटेंस के कंप्लीटली एंड में भी रख सकते हो। इसको हम एंड में रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए पिछले पूरे हफ्ते गलियां साफ नहीं की गई थी। द स्ट्रीट्स क्योंकि प्लूरल हो गया तो आ जाएगा वर नॉट बीइंग क्योंकि कंटिन्यूटी है यहाँ पे। द स्ट्रीट्स वर नॉट बीइंग क्लीन्ड और उसके बाद में हो जाएगा द होल थ्रू आउट द होल लास्ट वीक। द होल लास्ट वीक ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। The streets were not being cleaned throughout the whole last week or the last whole week. Next है जब हम पार्क में गए थे तब कौन सा म्यूजिक बज रहा था। अब यहाँ पे फिर से दो सेंटेंसेस हैं तो ये हो जाएगा। देखिए आप इसको भी कर सकते हो। इस बार मैं चलिए पहले इसी सेंटेंस को करती हूँ सेकेंड वाले को बाद में इस पे आएंगे। तो ये हो जाएगा which music was being played। म्यूजिक के केस में हम प्ले इसको यूज करते हैं। सो विच म्यूजिक वॉज बीइंग प्लेड व्हेन वी जब हम पार्क में गए थे। व्हेन वी वेंट टू द पार्क। व्हेन वी रीच्ड टू द पार्क आप ये भी यूज कर सकते हो। सो विच म्यूजिक वॉज बीइंग प्लेड तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं हमारी वोकैबुलरी पे और वोकैबुलरी में आज हम करेंगे अबाउट पर्सनल फाइनेंस। इनको फर्स्ट वर्ड इज आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स को हम इस तरह से समझते हैं इनकम। इनकम अब इनका ऑपोजिट हो जाएगा आउट और कम का ऑपोजिट हो जाता है गो। एक होती है इनकमिंग एक हो जाती है आउटगोइंग। तो देखिए इनकम जो अमाउंट आपके पास रेगुलर इंटरवल पे आती रहती है और आउटगोइंग जो अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे बाहर जाती रहती है यानी कि हम जिसको स्पेंड करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे वो हो जाती है हमारी आउटगोइंग्स। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। इसका आपको पता है। डायरेक्ट नेक्स्ट पे आते हैं लूज ट्रैक ऑफ समथिंग और समबडी। इसके लिए पहले हम इसका जो ऑपोजिट है इसको देखते हैं। कीप ट्रैक ऑफ समथिंग और समबडी। कीप ट्रैक यानी कि कोई भी अगर काम हो रहा है कोई एक्शन हो रहा है तो उसके बारे में एक एक बात कि मुझे जानकारी देते रहना। इसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं दैट कीप मी ट्रैक ऑफ दिस एक्टिविटी कीप मी अपडेटेड विद दिस एक्टिविटी यानी कि इसकी एक एक जानकारी आप मुझे देते रहना टाइम टाइम पे। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा लूज ट्रैक ऑफ समथिंग और समबडी यानी कि कोई एक्टिविटी है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ हो रही है कब हो रही है किस तरह से हो रही है यानी नाउ यू हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ दैट एक्टिविटी। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का आपको खैर पता है वैसे भी देयर इज मनी इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में मनी है देन यू आर इन क्रेडिट। और इसका ऑपोजिट हो जाता है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन या फिर इसके लिए एक इडियम मुहावरा यूज किया जाता है एंड दैट इज इन द रेड। इन द रेड का मीनिंग होता है इन डेट। इन डेट यानी कि कर्जे में होना। इफ यू आर ओवरड्रॉन यू हैव एन ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है माउंट अप। अब माउंट यानी कि इकट्ठे हो जाना ग्रुप सा बन जाना एक इकट्ठे होते रहना। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं माउंट। यहाँ पे देखिए सिनोनिम में गिवन है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मीनिंग भी यही होता है कि इकट्ठे होते रहना जुड़ते रहना। बिल्ड अप यानी कि इंक्रीज होते रहना ग्रेजुअली साइज में। वहां पे इसको यूज किया जाता है माउंट अप। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का खैर मीनिंग आपको पता ही है बस आप एक बार इनको जरूर रीड कर लेना। और विड्रॉविंग विड्रॉ DRAW विड्रॉ और सेकेंड फॉर्म इसकी हो जाती है विद ड्रू। थर्ड फॉर्म हो जाती है विद ड्रॉन
और आईएनजी फॉर्म में हो जाता है विदड्रॉइंग। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे इसके। डायरेक्ट हम नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज बैंक स्टेटमेंट। ये एक रिकॉर्ड रहता है आपके मनी का, आपने कितना पे किया है, कितना आपके अकाउंट में आया है और कितना गया है। बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। थ्रिफ्टी वो पर्सन होता है जो काफी देख देख के रुपए स्पेंड करता है, यानी कि काफी, आप इसको मान सकते हो एक टाइप से थोड़ा सा कंजूस होता है ये। और इसका ऑपोजिट हो जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, जो बहुत ज्यादा उड़ाता हो रुपए, वो एक्स्ट्रावेगेंट। और जो देख देख के खर्चा करता हो वो जाता है हमारा थ्रिफ्टी। नेक्स्ट है स्क्वेंडर समथिंग। अब यहाँ पे देखिए थ्रिफ्टी और एक्स्ट्रावेगेंट ये सिर्फ मनी के केस में था कि जो रुपए ज्यादा स्पेंड करता है या फिर कम स्पेंड करता है। लेकिन स्क्वेंडर ये हम मनी के केस में भी यूज कर सकते हैं और ये टाइम के लिए भी यूज किया जा सकता है। कोई पर्सन जो मनी को वेस्ट करता हो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्क्वेंडर। और कोई पर्सन जो टाइम को वेस्ट करता हो, समय बर्बाद करता हो इन अ केयरलेस वे, वहां पे भी हम ये यूज कर सकते हैं स्क्वेंडर। नेक्स्ट है सम ऑफ समथिंग, यानी कि कंप्लीट अमाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स आपको पता है करंट अकाउंट जो है इन पे लिटिल इंटरेस्ट मिलता है आपको, जबकि डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं इन पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे पैराग्राफ पे जिसमें इन सभी वर्ड्स को और फ्रेजेस को यूज किया गया है। आर यू गुड एट लुकिंग आफ्टर योर मनी? टू लुक आफ्टर, टू केयर, यानी कि क्या आप अच्छे हैं अपनी मनी की देखभाल करने में, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पूछा गया है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, डू यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर आउटगोइंग्स, कि आप जितने खर्चे करते हो, जितनी मनी आपसे बाहर जाती है आपके अकाउंट से, क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड है? जैसे कि एग्जाम्पल डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं, और लॉस ट्रैक ऑफ व्हाट यू स्पेंड, या फिर जो आप स्पेंड करते हो, जो खर्चा करते हो उसका ट्रैक आपने खो दिया है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है आपके कितने खर्च हुए हैं। नेक्स्ट है कीप योर अकाउंट इन क्रेडिट ऑल द टाइम, अपना जो अकाउंट है उसको इन क्रेडिट में रखो हमेशा। और आर यू समटाइम्स ओवरड्रॉन, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप ओवरड्रॉन हो जाते हो, यानी कि आपके अकाउंट में जितना नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा आप स्पेंड कर देते हो। नेक्स्ट है पे योर क्रेडिट बिल्स प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली यानी कि ऑन टाइम, ऑन टाइम या फिर तेजी से, रैपिडली। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं उनको प्रॉम्प्टली पे करो और करते हो। और डू यू अलाउ डेट्स टू माउंट अप, माउंट अप यानी कि इकट्ठे हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, या फिर आप अलाउ होने देते हो डेट्स को कि वो इकट्ठे हो जाए, माउंट अप हो जाए। नेक्स्ट है चेक ऑल द ट्रांजैक्शंस इन योर बैंक स्टेटमेंट्स, कि अपनी बैंक स्टेटमेंट में सभी ट्रांजैक्शंस को आप देखते हो। और डू यू जस्ट इग्नोर देम, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट्स को वैसे ही इग्नोर कर देते हो। नेक्स्ट है थिंक यू आर थ्रिफ्टी, क्या आपको लगता है कि आप थ्रिफ्टी हो, आप पैसे बचाते हो, देख देख के खर्च करते हो। और डू यू स्क्वेंडर लार्ज सम्स ऑफ मनी, या फिर तुम बहुत बड़ी अमाउंट मनी की वैसे ही गंवा देते हो इन रेकलेस वे, रेकलेस यानी कि केयरलेस वे। तो ये पैराग्राफ था और ये है आपका टास्क, आपको यहाँ ब्लैंक्स को फिल करना है, प्लस ये है आपका कन्वर्जन वाला टास्क, इन सभी सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ही डिटेल में करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।